नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म फर्टिलिटी दोस्त। आई एम पूर्णिमा, योर दोस्त। दोस्त हम आपके शुरू से हैं, तभी हमने सोचा आज हम दोस्त बन के दोस्त की तरह बातें करते हैं related to important talks related to AMH. So when we usually visit doctor, I would say fertility specialist, fertility center, then the first thing is आपका AMH कितना है? व्हाट आर योर एएमएच वैल्यूज। किसी को लगता है बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, किसी को लगता है बहुत कम, बहुत बुरा है। बट इज इट रियली सो दैट योर एएमएच इज गोइंग टू इफेक्ट और इम्पैक्ट योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम? जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। बट अगेन व्हेन यू आर डीलिंग विद रियली लो एएमएच, देन व्हाट नेक्स्ट? इज आईवीएफ इज द ओनली ऑप्शन, या फिर आईवीएफ भी नहीं है, यू नीड टू गो फॉर डोनर साइकिल? सो देयर आर मेनी हिच, देयर आर मेनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस एएमएच, लो एएमएच, एंड अगर बहुत लो हो गया तो क्या होगा? डोनर साइकिल ही ऑप्शन है या आईवीएफ हो ही नहीं सकता, और अगर हो सकता है तो व्हाट अबाउट द इक्वालिटी एंड व्हाट अबाउट द एम्ब्रियोज देन? सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एएमएच, लो वैल्यूज, egg quality, and again it impact the embryo quality also. So we decided to discuss this small AMH today with you all. हमने सोचा बात करते हैं AMH लो हाई तो हम बहुत बार बोल चुके, आज हम बात करेंगे क्या सच में the values of AMH are going to affect your IVF procedure. The whole process of IVF, is it really dependent on your AMH values? And if your values are really low, then you really need to worry about this. अगर ऐसा है so let's talk about this. And if any queries related to AMH or any other queries related to your IVF treatment or even simple IUI procedure, you can post on comment box, and let's start with the session. This session we have ART Fertility Clinic as a knowledge partner, and we have very senior doctor from Delhi, Dr. Parul Katyar, to join us as a guest doctor on our show. So viewers, just start pouring your questions, your doubts, and let's start with the session. And I'm calling our senior doctor to the main screen. Namaskar, Dr. Parul. Welcome to Fertility World. थैंक यू, आप लोग ने हमको होस्ट किया अपने प्लेटफॉर्म पे, एंड आई होप वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन टुडे. Right. So, viewers, we have very senior doctor, Dr. Parul from Delhi, and she's from ART Fertility Clinics, Delhi branch. She's a co-medical director at ART Fertility Clinics. She's very senior doctor when we are talking about the complicated cases, and she herself has done more than 30,000 IVF procedures. एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नंबर काउंट कर रहे हैं, इसमें सक्सेस रेशियो इज रियली गुड. वी हैव मेनी members from our own community visiting her, taking her advice, taking treatment from her, and again the success is always there. So if you are in Delhi NCR, you want to visit her, you want to take her suggestion, you want to take her advice, please let us know. Just message us on this platform, on this live session also, and we can arrange for your free visit to Dr. Parul. Dr. Parul has several publications on her name and has attended many national, international conferences as a guest and panelist and speaker. So, viewers, let's start with today's topic related to how AMH affects IVF procedure. So, Dr. Parul, is it really so? AMH कम हो गया तो भी डर है, ज़्यादा हो गया तो भी डर है? सो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज एएमएच, एएमएच है क्या. सो एएमएच का अगर हम फुल फॉर्म समझे तो वो है एंटी मुलेरियन हार्मोन. सो ये एक हार्मोन है जो कि ओवरी में से सिक्रीट होता है, और वो छोटे छोटे फॉलिकल्स जो कि जनरली हमें नहीं दिखते हैं बट ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, ये प्रिडोमिनेंटली उसमें से रिलीज होता है. जो ओवरीज होती है फॉर अ फीमेल, ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं हर कंसल्टेशन में शायद समझाती हूँ कि ओवरीज जो होती है वो कोई नया एग कभी भी प्रोड्यूस नहीं करती. ओवरीज में एग जो है वो पैदाइशी होते हैं, और
इनमें से इसीलिए हमेशा जो नंबर्स या हम जब क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम इसको ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, बिकॉज ये एक तरह से हमारा रिजर्व है जो हमारी ओवरी में है, एंड इट इज नॉट ओवेरियन प्रोडक्शन, मतलब कोई नया अंडा नहीं बन रहा। नहीं। तो अगर हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि एग्स को धीरे धीरे ये ओव्यूलेट करते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी क्वांटिटी कम होती जाती है और ओवेरियन रिजर्व भी कम होता जाता है। अब इसको समझने के लिए या हम इसको कैसे पता करें, तो इसमें सबसे एक्यूरेट जो टेस्ट है वो एएमएच है, बिकॉज ये डायरेक्टली उन छोटे छोटे फॉलिकल से आता है जो कि ओवरीज के अंदर प्रेजेंट हैं और जिनके अंदर एग्स होते हैं। सो इन अ वे ये वैल्यू प्रिडिक्ट करती है कि एक फीमेल का ओवेरियन रिजर्व या एग रिजर्व क्या है, और इसीलिए एएमएच जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि क्या है। दूसरा तरीका जिसको हम समझ सकते हैं वो है अल्ट्रासाउंड के द्वारा, जिसमें हम काउंट कर सकते हैं वो फॉलिकल्स जो कि प्रिडिक्ट करेंगे कि इसका पेशेंट का या एक फीमेल का एग रिजर्व क्या है। सो दिस इज हाउ व्हाई एएमएच इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है और इसका क्या रेलेवेंस है एक फीमेल की फर्टिलिटी में। So, Dr. Parul, usually we consider that if we have low AMH, that means we have very low reserve. And the best option available for a woman dealing with low AMH is obviously IVF. So, is it really so? सो अगेन मैंने बताया जैसे कि क्वांटिटी को मेजर करने के जो तरीके हैं उसमें एएमएच सबसे सेंसिटिव और स्पेसिफिक तरीका है कि भाई क्वांटिटी कैसी है। बट ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे एग्स चाहिए प्रेग्नेंट होने के लिए। हर महीने ओवरी कुछ एग्स को रिक्रूट करती है या अपने तैयार करती है कि इसमें से एक एग ग्रो करेगा, और अल्टीमेटली हर महीने बस एक ही एग नेचुरली रिलीज होता है, एंड हमें एक ही एग चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी होती है। तो ये डेफिनेटली एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर एग रिजर्व कम हो रहा है तो ये मार्क कर रहा है कि फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, बिकॉज रिजर्व कम हो रहा है, क्वांटिटी कम होती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर क्वांटिटी कम है तो और और हर महीने एक एग फिर भी रिलीज हो रहा है तो ये फीमेल्स जिनका एग रिजर्व कम है नेचुरली कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें ये समझना है कि अगर एग रिजर्व कम हो रहा है या डिक्लाइन होता जा रहा है तो देयर हैज टू बी एन अर्जेंसी टू गेट प्रेग्नेंट, बिकॉज ये डिक्लाइन होता जा रहा है तो अल्टीमेटली हम इसको रीजेनरेट नहीं कर सकते, ये रीग्रो नहीं करेंगे, ये खत्म ही होता जाएगा। तो हम बहुत ज्यादा टाइम इस चीज पे नहीं लगा सकते कि हाँ हम तो नेचुरली ही प्रेग्नेंट होंगे, एग रिजर्व कम होने की वजह से क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो हर महीने एग रिलीज हो रहा है। बट उसी Right. एग के साथ भी शायद बहुत सारे एग्स जो हैं वो वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज हाउ इट इज। एक एग रिलीज करने के लिए भी ओवरी बहुत सारे एग्स को रिक्रूट करती है और वो रिलीज नहीं होते, वो दे डाई आउट। सो इसका मतलब हर महीने केवल एक एग नहीं जा रहा है, बहुत सारे एग्स जाते जा रहे हैं। और अगर आपका एग ऑलरेडी रिजर्व जो है वो बॉर्डर लाइन पे है और आपने बहुत टाइम जाया कर दिया और आपको फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है डिस्पाइट ट्राइंग नेचुरली, तो उन केसेस के लिए एग्रेसिव अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज फर्टिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आईवीएफ का मैक्सिमम सक्सेस रेट है टू गिव और रिजल्ट इन अ प्रेगनेंसी इन अ पर्टिकुलर मंथ। नेचुरली अगर वो 10% है, ट्रीटमेंट से 12 से 15% होता है, और यंग वुमेन में वो 50% तक जाता है इन वन साइकिल। सो डू नॉट डेस्पेयर, देर इज नो रीजन टू फॉर अस टू डेस्पेयर कि हमने अभी ट्राई करना शुरू किया, डॉक्टर ने मेरे 5 टेस्ट लिखे, अरे मेरा एमएच बहुत कम आया है, आई एम ओनली 29-30, तो क्या मुझे आईवीएफ के लिए जाना होगा? आई कैन अश्योर यू नहीं, आपको अपने आप को टाइम देना है बिना स्ट्रेस हुए। बट ये ध्यान में रखना है हमेशा कि इट कैन नॉट बी एन इनडेफिनिट टाइम। आपको आप Right. सेट करिए, अगर 1 साल लगता है आपको कि हमें 1 साल चाहिए एंड वी वांट टू ट्राई, यू कैन ट्राई, बट देन प्रिपेयर योरसेल्फ टू स्टार्ट अ ट्रीटमेंट इफ नेचुरली देयर इज नो प्रेगनेंसी। Right. So basically, just plan each and everything. कितने महीने Yes. हमें नेचुरल कंसेप्शन को देने हैं और आफ्टर हाउ मेनी ट्रायल्स और मंथ्स वी नीड टू रियली विजिट द डॉक्टर एट Yeah. we can say that good clinic. So Dr. Parul, we have one question over here related to higher values of AMH.
Do people with PCOS have a high AMH number? डेफिनेटली पीसीओएस विमेन में हाई एएमएच नंबर होता है, और ये भी लिंक्ड है उनके ओवेरियन रिजर्व से, क्योंकि पीसीओएस में क्या होता है कि जो छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स ओवरी में है एंड वो टाइमली रिलीज नहीं हो पा रहे, बट दे आर ऑलरेडी देयर। वो उस स्टेज में आ गए हैं डेवलपमेंट में ओवरी के जहां से एएमएच बनने लगता है। इसी वजह से Oh, एएमएच जो है काउंट हमें बहुत हाई दिखता है इन विमेन का, बिकॉज धीरे धीरे ओवरी तो वहां तक उस स्टेज तक एग्स को पहुंचा दे रही है जिसके बाद में वो हार्मोन डिपेंडेंस पे आएंगे, उनको ग्रो करना चाहिए, बट हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। सो इसलिए एएमएच का वैल्यू पीसीओएस विमेन में ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे फॉलिकल्स रेडी है टू ग्रो एंड वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस एएमएच को। So this is how why AMH is high in women with PCOS. so how to treat this? Is it really possible to lower down these values? सी अगर पीसीओएस में हम अगर एएमएच को कम करना चाहते हैं, पहली चीज हमें ये समझना पड़ेगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन पीसीओएस प्लेज अ वेरी बिग रोल। और अगर हम किसी तरह से लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, स्ट्रेस को रिड्यूस करके, डाइटरी चेंजेस के थ्रू अपनी साइकिल को रेगुलराइज कर सके, एंड जिसका मतलब है कि पीरियड्स टाइम से आए, एग रिलीज टाइमली हो, सो प्रोबेबली वी विल सी दैट एएमएच पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। बट ये एक चीज है कि एएमएच हाई होना इज नॉट अ डिजीज, इसको भी समझना है कि एएमएच इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ जो आप देख पा रहे हैं, बट पीछे बहुत कुछ चल रहा है। तो केवल एएमएच कम करना इज नॉट द सोल्यूशन इन पीसीओएस, और वो आप शायद कभी भी कम पूरा कर नहीं पाएंगे, बिकॉज ओवरी ने ऑलरेडी बहुत सारे एग्स को सिलेक्ट किया हुआ है टेंटेटिवली ग्रो करने के लिए। तो चाहे हम कुछ भी कर लें, वो एग्स अब है और वो एएमएच धीरे धीरे बनाते रहेंगे। इसीलिए पीसीओएस में अगर हाई एएमएच आ रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इज पॉसिबल, बट एएमएच कैन नॉट बी ब्रॉट डाउन कंप्लीटली, बिकॉज वो एग्स तो है ही, even if the woman starts ovulating over a period of time. And And again, I would like to specify, AMH is not a disease. It is because of PCOS that you are having a high AMH, not that high AMH is causing the PCOS. PCOS, right, right. And what about the lower values of AMH? इसको बढ़ाना पॉसिबल है? बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कल कुछ महीने पहले करवाया था तो 1 से भी कम था, अब करवाया है तो हो गया है, आई वाज टेकिंग दिस सप्लीमेंट दैट सप्लीमेंट, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और बाकी लोग भी सोचने लगते हैं कि यार मैं भी कुछ करके दिखाऊं। सो इज इट रियली पॉसिबल? सी दो चीजें इसमें आपको समझनी है, आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। पहली चीज, क्या जो मेरी उम्र है और उसकी वजह से होने वाली जो एजिंग के चेंजेस हैं, क्या मैं उसको कंप्लीटली रिवर्स कर सकती हूँ? मतलब कैन आई रिवर्स माई ग्रे हेयर टू बिकम ब्लैक अगेन? नो। क्या हमारी आईसाइट जो एज के साथ चेंज होती है, क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं? सो हम ये क्यों समझते हैं कि अगर एग्स खत्म हो गए हैं या ओवरीज की एज, ओवेरियन एजिंग होगी जिसकी वजह से एग्स कम हो रहे हैं, तो उसको हम कोई दवाई खाने से वापस रिवर्स कर सकते हैं? ये एक मिथ है। इस पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारा साइंटिफिक वर्क हुआ है, एंड टाइम टू टाइम बहुत सी ऐसी मेडिकेशंस आती रही हैं जिसने कहा है कि आप एंड्रोजेंस लीजिए, जिससे आपका, क्योंकि ओवरी को एंड्रोजन की जरूरत होती है, और अगर एंड्रोजन खाएंगे तो उससे आपके हार्मोन्स बेटर होंगे, और वो छोटे मोटे एग्स जो कहीं ओवरी में बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड पड़े थे वो बेटर हो जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली, या फिर आप सप्लीमेंट्स लीजिए या फिर आप हर्बल मेडिकेशंस लीजिए, अनफॉर्चुनेटली सो फार साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में हमारे पास बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है कि कोई दवाई लेने से हम एएमएच को बढ़ा सकते हैं अगर एएमएच कम हो गया है। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल है। मतलब आई पर्सनली डू नॉट बिलीव, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ आईवीएफ स्पेशलिस्ट डू नॉट बिलीव दैट एएमएच को किसी दवाई से बढ़ाया जा सकता है। हाँ, डेफिनेटली हमें ये कोशिश इसीलिए करनी चाहिए कि प्रेगनेंसी हमें जल्दी से जल्दी हो। दूसरा एस्पेक्ट जो इसमें ये है is with regards to how AMH is being measured. So unfortunately, there are many kits available nowadays in the labs, and different labs are using different kits to measure AMH. So इसकी वजह से भी
बहुत वेरिएशन देखा जाता है एएमएच के वैल्यूज में। अगर आप अभी कराएं तो कुछ और होगा, 1 महीने बाद कुछ और होगा। प्रॉब्लम ये है कि वो एएमएच बढ़ नहीं गया है या एएमएच कम नहीं हो गया है। इट इज बिकॉज प्रोबेबली दीज टू लैब्स में से एक लैब इनएक्यूरेट है शायद, या दोनों ही लैब इनएक्यूरेट है और आपके पास करेक्ट एएमएच एस्टिमेशन नहीं है। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि अगर आपको बार बार अलग वैल्यूज मिल रहे हैं, आप इसको कोरिलेट कराएं अपने अल्ट्रासाउंड के साथ में, बिकॉज कोई और तरीका नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड में हम स्कैन करके एंट्रल फॉलिकुलर काउंट मेजर करते हैं और दोनों को कंबाइन करके हम एक बॉल पार्क फिगर में पहुंच सकते हैं कि हम अप्रोक्सीमेटली एएमएच क्या होगा। ऑफ कोर्स देयर आर टू डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स, बट हम ये मत समझिए कि अगर एएमएच 2 महीने बाद बढ़ा हुआ आ रहा है तो वो एएमएच एक्चुअली बढ़ गया है। इट्स प्रोबेबली अ डिफरेंट लैब और अ डिफरेंट सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट दैट हैज आल्सो बीन यूज्ड। इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। Right. So next time, if there's some variation in your AMH levels, please do consider this lab factor also. Doctor, we have one query related to like at what age AMH starts to decline? Could we really correlate age and AMH? और अगर है तो कब हम तैयार हो जाएं कि बस अब AMH कम होने वाला है? सो देखिए, एएमएच तो हर एएमएच क्या है, वो ओवेरियन रिजर्व का प्रिडिक्टर है। तो ओवेरियन रिजर्व जैसे ही प्यूबर्टी आती है उसके बाद से हर महीने हम कुछ ना कुछ एग्स लूज करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एएमएच भी डिक्लाइन हो रहा है। ओनली थिंग इज दैट कि जो डिक्लाइन होता है हर महीने वो इतना स्मॉल होता है कि वो नंबर्स के फॉर्म में बहुत कम दिखता है। बट जैसे ही ओव्यूलेशन स्टार्ट हुआ है उसके बाद से रिजर्व कम ही होता जाएगा टिल द टाइम ऑफ मेनोपॉज। ये समझना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि देयर इज सर्टेन एज। ओनली थिंग इज दैट कि हमने एएमएच को एक सर्टेन एज के लिए इस एज पे ये एएमएच नॉर्मल है, इस एज पे ये एएमएच नॉर्मल है। अगर वैल्यू उस नॉर्मल क्राइटेरिया से कम आ रही है तो वो उस एज के लिए एएमएच कम हुआ, लेकिन एएमएच हमेशा डिक्लाइन होगा, उसको इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस चीज से एएमएच आ रहा है वो बढ़ती उम्र के साथ में कम होता जा रहा है और वो है हमारे एग्स। राइट राइट। ओके, सो एएमएच इज गोइंग टू डिक्लाइन। सो अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपका एएमएच बहुत अच्छा आ रहा है एट अ सर्टेन एज, दैट मीन्स दैट एवरीथिंग इज गुड, बिकॉज अल्टीमेटली एग्स आपने कुछ तो ओव्यूलेट किया है, हर महीने कुछ एग्स डाई आउट किए जिसको हम एट्रीजिया कहते हैं। तो they have definitely the reserve has definitely come down month on month. Right. So again, we can say that yes, AMH values do count, do matter. So, doctor, can low AMH lead to IVF failure? There are many factors जिसकी वजह से IVF फेलियर होता है। एंड लो एएमएच का मतलब अगेन लो रिजर्व, एंड उसका मतलब लेस नंबर ऑफ एग्स जब हम आईवीएफ करते हैं। बिकॉज हम आईवीएफ में भी इंजेक्शंस के द्वारा जो अंडे ओवरी में है उन्हीं की ग्रोथ करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का एग रिजर्व बहुत कम है तो हम इंजेक्शन से ज्यादा एग ग्रो कर लेंगे। मतलब इंजेक्शन का काम स्टिमुलेट करना है उन एग्स को जो ओवरी में प्रेजेंट है, उनका काम जेनरेट करना नहीं है नए एग्स। तो अब आईवीएफ का सक्सेस किस पे बेस्ड है कि हमने कितने एग्स हार्वेस्ट किए और हमारे पास कितने एम्ब्रियोज बने। तो पहला फैक्टर जो लो एएमएच की वजह से एक आईवीएफ साइकिल में होता है वो ये होता है कि हमारे पास एग नंबर्स बहुत कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो नंबर ऑफ एम्ब्रियो या बेबीज हम बना पाते हैं वो भी कम हो जाते हैं। जैसे ही बेबीज की क्वांटिटी कम होगी हमारे पास वो सिलेक्शन की एबिलिटी अगर ज्यादा होंगी तो शायद उनमें से 1 2 3 नंबर्स जो होंगे वो अच्छे एम्ब्रियोज या बेबीज होंगे। पर अगर हमारे पास 1 या 2 ही एग्स हैं, हो सकता है उसमें से रिजल्टिंग एम्ब्रियो अच्छा बने या ना बने। सो इसकी वजह से लो एएमएच कैन लीड टू अ हायर फेलियर रेट, बिकॉज सिलेक्शन जो है एग्स का वो रिड्यूस हो जाता है एंड हमारे पास लेस एम्ब्रियोज होते हैं। सेकेंड चीज जो एक और है जिसके बारे में काफी डिस्कशन होता है वो ये होता है कि लो एएमएच का मतलब एग रिजर्व कम हो गया। अब एग रिजर्व कम होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि एग नंबर्स एज के साथ में डिक्लाइन हो रहे हैं। मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी ओवरी की भी उम्र बढ़ रही है, इसको हम ओवेरियन एजिंग कहते हैं। नाउ अगर एग रिजर्व टाइम से पहले डिक्लाइन हो रहा है इसका मतलब हमारी ओवरीज में
प्री मेच्योर ओवेरियन एजिंग हो रही है। तो अगर ओके। AMH कम है तो देर इज प्री मेच्योर एजिंग ऑल्सो विच इज हैपनिंग। सो प्री मेच्योर एजिंग की वजह से भी कुछ लोगों का ये मानना है कि एग की क्वालिटी भी खराब होती है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक डिफरेंस बिटवीन अ यंगर पर्सन एंड एन ओल्डर पर्सन, कि अगर यंगर है तो हेल्दियर है, ओल्डर है तो वी विल हैव मोर एज रिलेटेड डिजीजेस लाइक हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस एक्सेट्रा बढ़ते जाते हैं। तो सिमिलरली हमारे एग्स में भी अगर एग्स कम है और ओवरीज एज हो गई हैं और इसकी वजह से एग्स कम है, तो उसमें भी वो चेंजेस देखे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एग क्वालिटी और उनकी जेनेटिक हेल्थ। इसकी वजह से भी कई बार आईवीएफ फेलियर्स देखे जाते हैं कि लो एमएच के साथ में एम्ब्रियो क्वालिटी इज समटाइम्स अफेक्टेड और उसकी वजह से प्रेगनेंसी रेट्स कम आते हैं। Right. So we can say that yes, low AMH do affect your fertility treatments or conception. So यस, Dr. Parul, usually हमने देखा या बहुत केसेस में हमने सुना भी कि लो AMH हो गया तो now the only option available for you is donor cycle. So क्या सच में ऐसा है और कितनी वैल्यू तक हम सोचते हैं सेल्फ साइकिल है, मार्किंग लग गई, अब डोनर साइकिल है? ऑनेस्टली देयर शुड बी नो कट ऑफ। अगर एक फीमेल ओव्यूलेट कर रही है रेगुलरली, स्पेशली अगर एक यंगर फीमेल ओव्यूलेट कर रही है, बिकॉज एज का बहुत इम्पैक्ट होता है, एंड इवन इफ उनका एग रिजर्व कम है, शी डिजर्व्स अ चांस। आई डू नॉट बिलीव कि लो एग अनलेस अनटिल इट्स वेरी लो, मतलब इतना लो कि वो मिनोपॉज के जैसे सिचुएशन में है कि एएमएच की वैल्यू 0.0 टाइप्स में कुछ आ रही है, बिकॉज वी गेट दोज वैल्यूज। बट सपोज हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर से कम है, बट फीमेल एज इज ऑन आवर साइड और द पेशेंट साइड, so there she has to be given a fair chance to get pregnant with her own eggs. Own eggs should be given a priority. सबसे important है कि it is very easy to get pregnant with donor egg cycles, and sometimes I have seen कि AMH values 1 नैनोग्राम पर ml पे भी डोनर एग को सजेस्ट किया जाता है कि नहीं आपका तो 2 होना चाहिए था पर ये 1 है। बट अगर 1 भी है तो इन दैट केस वी कैन एक्सपेक्ट दैट अगर हम आईवीएफ करें, मैं अभी आईवीएफ की बात कर रही हूँ, तो हमारे पास 7-8 एग्स आराम से आ सकते हैं। तो अगर अगर 7-8 एग से और यंग एज पे हमारे पास क्या हम एक एम्ब्रियो नहीं बना सकते जिससे प्रेगनेंसी हो सकती है? तो देयर कैन नॉट बी अ कट ऑफ अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्सट्रीमली लो एएमएच, like a value, as I just said, 0.01, 0.02, which means that there is almost nothing, because generally lab reports will not give you a complete zero. तो कई बार वैल्यूज बहुत कम आती हैं, लेकिन दे विल नॉट कम जीरो बट दे आर नियरली इक्वलेंट टू जीरो, तो वो एक डेफिनेट सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन है जहां पे मीनोपॉज ऑलरेडी हो चुका है, देर आर नो पीरियड्स कमिंग, वी नो कि इसका मतलब ओवरीज के पास अब कोई एग्स नहीं है, तो वो एक डेफिनेट क्राइटेरिया होता है डोनर एग के लिए जाने में। तीसरा एक क्राइटेरिया जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ मटर्नल एज, जो हमारे पास पेशेंट आए हैं उनका और उनके एएमएच का लेते हैं। एट ऑन एनी डे अगर मेरे को दोनों में से सिलेक्ट करने को कहा जाए तो मैं मटर्नल एज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी, बिकॉज एज इज द बिगेस्ट फैक्टर जो कि हमारा एबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट डिफाइन करती है। लेकिन अगर दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है, एग रिजर्व भी अच्छा नहीं है, एएमएच की वैल्यू भी अच्छी नहीं है और एज भी ज्यादा है, तो उस केस में वी नो कि अगर हम उनके एग से आईवीएफ करेंगे तो सक्सेस बहुत कम होने वाला है। इस केस में डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आप डोनर एग के लिए जाइए। सो इसलिए अगर आप एक कोई एब्सोल्यूट नंबर मांगे तो मैं कहूंगी जीरो के अलावा कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है जिसपे हम ये बोले कि आप अपने एग से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, या फिर अगर एज बहुत ज्यादा है 44 45 है और लो रिजर्व है, तो probably yes, donor egg is a more practical solution, because pregnancies are very rare at this age even if we get good numbers of eggs. ओके। पर डॉक्टर पारुल, यूजुअली केसेस ऐसे देखे गए कि व्हेन द फीमेल इज हैविंग दिस लोअर एएमएच, डॉक्टर सजेस्टेड दैट लेट्स डू अ स्टिमुलेशन फॉर 2 to 3 साइकिल्स, और 2 या 3 फॉलिकल्स या हम ऐसे कहें कि ओवम मिलने के बाद भी एम्ब्रियोज अच्छे नहीं बन रहे हैं, एंड उसके बाद अगर हम डोनर पे जाते हैं तो I think that would be the better approach for Yeah, that thing. बिल्कुल। दैट्स व्हाट आई सेड कि एब्सोल्यूट नो नो कुछ भी नहीं है। ये जो आपने Right. एक सिनेरियो बताया ये एक इम्पोर्टेंट सिनेरियो, और ये केवल एएमएच के साथ लिंक नहीं है एक्चुअली।
कई बार हमें हम्म। बहुत सारे एग्स मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो एग क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती, और वी एंड अप विद नो एम्ब्रियोज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमने 2-3 साइकिल्स कर लिए और सब कुछ लगता है ठीक है, बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। सो ऐसे केसेस में डेफिनेटली डोनर एग्स का एक रोल है। तो ये इट इज लिंक टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि एग क्वालिटी कैसी है। किसी का प्रोवन एग क्वालिटी खराब है, आई आई डोंट थिंक सो हम उसको ये बोलेंगे कि आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए। 2-3 साइकिल्स आर मोर देन इनफ टू नो दैट इन पेशेंट को अपने एग से प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और जो अभी आपने बात की दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो पूलिंग साइकिल, वो एक्चुअली तभी हम लोग करते हैं जब हमको पता है कि इतनी कम एग्स है कि हम कुछ भी करें हमारे को 1, 2 या 3 एग्स ही मिलने वाले हैं, और हमें ये पता है कि नंबर्स डू मैटर, कि राइट। ज्यादा नंबर्स एग्स होंगे। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, जो नॉर्मली एक ही साइकिल में हमें मिलता है, हमको वो नहीं मिल पा रहा, इसलिए हमें मल्टीपल स्टिमुलेशंस करने पड़ते हैं। बिकॉज हर महीने ओवरी कुछ एग्स को सिलेक्ट करती है कि अब ये इनमें से एक ग्रो करेगा। तो हमें पता है अगर वो ओवरी के पास एग्स कम है, वो कम सिलेक्ट कर पा रही है, लेकिन तो उसको पहले यूज करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट साइकिल में हमारे पास फिर ओवरी कुछ एग्स को सिलेक्ट करेगी, तो हम उसको भी यूज करने की कोशिश करते हैं। सो इट इज काइंड ऑफ पूलिंग दी एग्स, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एग्स इन वन साइकिल। सो पूल करके वी ट्राई एंड मेक एम्ब्रियोज, मतलब हर साइकिल में एम्ब्रियो बनाते हैं, एंड देन इट इज अबाउट होपिंग दैट इसमें से कुछ ना कुछ हेल्दी होगा या अच्छा बनेगा। दिस इज व्हाट पूलिंग मीन्स, कि मल्टीपल साइकिल्स कर रहे हैं। And definitely pooling doesn't happen in normal case scenarios. It happens only in our poor prognosis patients. एज ज्यादा है, एग रिजर्व कम है, so इसीलिए इनका सक्सेस भी कम होता है। कम है। और डॉक्टर पारुल, कितने साइकिल हम स्टिमुलेशन के दे सकते हैं एक पेशेंट को, लाइक फॉर दिस एग पूलिंग सिचुएशन? देर इज नो अपर कट ऑफ, बट अच्छा। आई या देर इज नो अपर कट ऑफ कि आप इतने नंबर ऑफ आईवीएफ के बाद में साइकिल नहीं करिए। इसमें बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन होता है एंड बहुत इंडिविजुअलाइज एंड पर्सनलाइज डिसीजन होता है। सपोज मेरे पास एक पेशेंट आए और उनके मुझे केवल 2-3 एग्स ही मिले, मैंने उनके लिए 3 साइकिल्स कर दिए ऑलरेडी, और सब कुछ करने के बावजूद मेरे पास एक भी अच्छा एम्ब्रियो नहीं है, या मैंने 2 साइकिल्स भी कर दिए पर मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितने भी साइकिल्स करूंगी, तो पेशेंट के साथ ऑफकोर्स जब मैंने हम डिस्कस करें, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अब इनको हम कुछ भी कर ले हमारे पास अच्छे एम्ब्रियोज नहीं आएंगे। So this means we need to call it quits rather than continuing, बिल्कुल। stimulating and torturing a woman. That is what is very important to know when to decide अब नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक एक दो दो एग्स आते हैं, और over a period of time we are able to accumulate 2-3 good embryos। तो उसमें क्या होता है कि it's worth going ahead and trying, because हमें पता है कि even though quantity is less, but we are getting a embryo, और ये embryo can result in a pregnancy। So उस केस में it is worthwhile to give it a shot for up to 3 to 4 cycles। This is ओके। what is important, that though there is no upper cutoff, but I think that is enough for any woman to go through। I though have seen patients जिनके साथ मेरे साथ उन्होंने पहले 3-4 साइकिल कराए, फिर मैंने 2-3 साइकिल्स किए, तो ये चलता रहता है। बट सो देख आई कैन गिव यू कि ये नंबर है इसको बंद कर दो। हर पेशेंट की सिचुएशन अलग होती है, और हमें उसको बहुत पर्सनलाइज करना चाहिए, और इसमें पेशेंट का इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए डोनर एग इज नॉट एन ऑप्शन। सो अगर राइट। उनके लिए ऑप्शन ही नहीं है एंड दे वांट टू कीप ट्राइंग, then I am nobody to refuse। I can tell them, or as a doctor our job is to educate our patients। हमको समझाते हैं, और वो उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं डॉक्टर हम 1-2 साइकिल और ट्राई करना चाहते हैं। तो आई थिंक वी शुड गो बाय व्हाट दे सेइंग, बिकॉज अल्टीमेटली एक आईवीएफ स्टिमुलेशन इज नॉट गोइंग टू लीड टू एनी हार्म टू अ पेशेंट। हमें ये पता है कि ये ड्रग्स और ये सब प्रोसेसेस के साइड इफेक्ट्स हैं, बट ऐसे कोई बहुत सीवियर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जिसकी वजह से उनको आगे चल के प्रॉब्लम। तो इट इज ओके इफ दे वांट टू ट्राई। Right. And doctor, we have one query related to this luteal phase egg retrieval. What exactly is this? अच्छा, so this is a very technical question। Luteal phase egg retrieval में what we do is, so as I told you, शुरू से मैं बता रही हूँ, ओवरी में एग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी इसमें थ्योरीज आई है, कि पहले हम ये मानते थे कि हर साइकिल में बस एक ही वेव आती है जिसमें एग ग्रो करता है। फिर ये थ्योरीज चेंज हुई,
और अब ये कहते हैं कि एग का जो रिक्रूटमेंट और ग्रोथ है वो कई 2-3 वेव्स में भी हो सकता है। तो ल्यूटियल फेज स्टिमुलेशन का मतलब ये है, ये मानना कि ओवरी में जो एग्स हैं उनकी ग्रोथ जो कि वेव्स में हो रही है। तो जो ल्यूटियल फेज में एग्स दिख रहे हैं, फॉलिकल्स दिख रहे हैं, मतलब वो वो उनकी उनको अगर हम स्टिमुलेट करें तो वो वेव जो होगी हम उसको एक्सेंचुएट कर सकते हैं या स्टिमुलेट कर सकते हैं, और जो फॉलिकल्स हमें दिख रहे हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। ये जनरली स्टिमुलेशन या तो इमरजेंसी स्टिमुलेशन होता है जहाँ पे हमें कैंसर पेशेंट्स एक्सेट्रा के लिए करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है, उनको कीमोथेरेपी शुरू करनी है या रेडियोथेरेपी शुरू करनी है, तो उनके पास कोई टाइम नहीं है, तो हम उस वेव को यूज करके किसी भी टाइम पे स्टिमुलेशन कर सकते हैं एंड वी गेट एग्स। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एनी टाइम स्टिमुलेशन, केवल ल्यूटियल नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पेशेंट्स होते हैं जिनका एग रिजर्व बहुत कम है। तो एग रिजर्व जहाँ पे कम होता है वहां पे देखा गया है कि जो साइज जो है फॉलिकल का वो अक्सर पीरियड के बाद जो सेकेंड डे पे देखा जाता है कि कई बार क्या होता है कि साइज बहुत डिस्कॉर्डेंट होता है, मतलब एक फॉलिकल दिख रहा है वो 9 mm का है, दूसरा 5 mm का है, तीसरा 6 mm का है। तो जब हम इसको स्टिमुलेट करते हैं तो इनकी ग्रोथ भी वैसी डिस्कॉर्डेंट रहती है। तो आउटकम इन दी एंड कि 2-3 एग्स ही दिख रहे हैं बहुत अच्छा नहीं रहता, क्योंकि हो सकता है एक एग बहुत जल्दी मेच्योर हो जाए, दूसरा एग बाद में मेच्योर हो। यही फॉलिकल्स अगर हमें सिमिलर साइज के प्रीवियस साइकिल के ल्यूटियल फेज में दिख रहे हैं तो और हमको ग्रो करें, इंजेक्शन से ग्रो करें, तो प्रोबेबली इनका ग्रोथ जो रेट है वो सिमिलर रहेगा एंड वी माइट हैव अ बेटर आउटकम। तो ये इसका प्रिंसिपल यही है कि पुअर रिस्पॉन्डर्स में, स्पेशली पुअर रिस्पॉन्डर्स में जहाँ पे कि अक्सर ही देखा गया है कि एफएसएच लेवल बहुत हाई है, इसकी वजह से एग के साइज बहुत छोटे बड़े डिस्कॉर्डेंट हो जाते हैं जैसे ही पीरियड आता है। तो उसको यूज ना करके उन्हीं रिक्रूटेड एग्स को पहले ले लिया जाए जब उनका साइज सिमिलर है। ओके, And this is राइट। what luteal stimulation is. Key utilizing the second half of the cycle after ovulation and counting the eggs and then stimulating. I hope our patient knows what हाँ, luteal राइट। stimulation is. So post आई थिंक ovulation इसको लेते हैं. So rather than starting stimulation in second on the second day, we started post ovulation. right. I think her doctor suggested her this. Okay, fine. Yes, she Yeah, said it would doctor be because of suggested. the. It probably would be because of low egg reserve and discordant size of the follicle on the second day or third day. ओके, बट डॉक्टर पारुल, क्या हमें इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं अगर हम इस तरीके के रिट्रीवल पर जाते हैं? Oh yes, there is no compromise. Util simulation करते ही इसीलिए है क्योंकि we want a better outcome. ओके। Because we are using a set of eggs जिनका size similar है, तो हम्म। sometimes we are able to get a better set of growing follicles. Okay, as I said, numbers are less. That is why we start with luteal simulation. तो राइट। इसमें results are good, at least as good as a follicular stimulation. और ये डेफिनेटली सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए, ऐसा नहीं कि हम सबको ऐसे करते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं, ये जो डे 2 डे 3 पे बात नहीं बन रही है, हर बार हम देखते हैं 2 साइकिल देख लिए फॉलिकल डिस्कॉर्डेंट दिख रहे हैं, तो उसमें ल्यूटेल डज वर्क एंड इट हैज गॉट सिमिलर आउटकम। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि फ्रेश ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसमें एम्ब्रियोस को बना के अच्छा। हमें फ्रीज ही ओके। करना पड़ेगा, बिकॉज यूट्रस जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं होगा। राइट। इस स्टिमुलेशन में अक्सर स्टिमुलेशन के बीच में पीरियड आ रहा होता है, तो लाइनिंग तब तक रेडी नहीं हो पाती है, और इसलिए ट्रांसफर मतलब एग्स को निकाल के एम्ब्रियोस बना के हम फ्रीज कर लेते हैं और फिर यूट्रस में बाद में ट्रांसफर किया जाता है। Right. So I think you have heard the solution of this luteal phase retrieval, and as Dr. Parul suggested, आपके डॉक्टर ने आपको luteal phase retrieval suggest किया है. It's in the betterment of your treatment. We would suggest that please go ahead. Hopefully, you will get the good number of embryos in this cycle. Dr. Parul, low AMH means low reserve, low quality, low quantity. लोगों का मानना है बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन दे के आपने एक साइकिल में हमारे ज्यादा फॉलिकल निकाल लिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत स्टिमुलेशन हो गया इसलिए हमारा रिजर्व खत्म हो गया। तो इसमें सच में कितनी सच्चाई है? आई थिंक अब थोड़ा सा तो समझ में आ रहा होगा कि हम तब से बात यही कर रहे हैं कि हर महीने हम कुछ ऐसा नहीं है कि हम जो चाहें हम उसको ग्रो कर सकते हैं। ओवरी
कंट्रोल करती है प्रोसेस को, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ये पूरी एक हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस होती है। हर महीने कुछ एग्स सिलेक्ट होते हैं कि इनमें से एक एग ग्रो करेगा, बाकी एग्स जो है वो थोड़ा सा ग्रो करते हैं, बट अल्टीमेटली वो ग्रो करना इसलिए बंद कर देते हैं कि ये जो एक बड़ा वाला एग है वो एक प्रेडेटर की तरह है, वो बाकियों की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से, क्योंकि उससे एक फीडबैक मैकेनिज्म है। नाउ ये एग्स हम यूज करें या ना करें, दे आर नो लॉन्गर अवेलेबल इन द नेक्स्ट साइकिल बिकॉज दे विल अंडरगो एट्रीजिया और दे विल डाई। नाउ व्हेन वी डू एन स्टिमुलेशन, हम बस इन्हीं एग्स को यूज कर सकते हैं बिकॉज हम जो हाइपोथैलेमस मतलब ब्रेन और ओवरी की हार्मोनल एक्सिस है, हम उसको एक तरह से ओवरकम कर रहे हैं। तो जो वो डोमिनेंट एग बाकी एग्स की जो ग्रोथ बंद कर देता, हम क्योंकि बाहर से अब हॉर्मोन्स दे रहे हैं, वो एग्स भी ग्रो करते रहते हैं। सो हम जो existent ovarian reserve है, we are not by doing a stimulation, the reserve doesn't get affected. We have to understand जो eggs अल्टीमेटली खत्म ही हो जाने थे उस साइकिल में, बस वही हमने एक तरह से सैल्वेज किए हैं, सेव किए हैं, उनको स्टिमुलेट किया और उनको ग्रो किया है। इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द एग रिजर्व इन एनी वे। डॉक्टर स्टिमुलेशन हैज गॉट नो एग रिजर्व पे इफेक्ट। ये केवल स्टिमुलेट कर रहा है आपके जो स्मॉलर वीकर एग्स हैं, जिनको जो बड़ा वाला डोमिनेंट फॉलिकल था वो सप्रेस कर देता, उनको हम रिक्रूट करते हैं, सेव करते हैं और उनको हम ग्रो करते हैं। डॉक्टर पायरल, यू जस्ट मेंशन अबाउट दैट AFC, तो उसके लिए एग्जैक्ट डे 2 डे 3 ही पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का हमने सुना कि मैं तो डे 6 पे गई थी, डे 7 पे गई थी, तो व्हाट एग्जैक्ट इज द डे फॉर दिस AFC? By definition, yes, the best time to do antral follicular count ultrasound is second, third, fourth day। और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उस समय सारे एग्स जो हैं वो छोटे 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 होते हैं, तो हमें बेस्ट काउंटिंग मिलती है। और जैसे जैसे टाइम निकलता है वो एग डोमिनेंट होने लगता है, और जो छोटे वाले एग्स जो ऑलरेडी उस साइकिल में ग्रो करने के लिए बने थे, हो सकता है वो कोलैप्स होने लगे क्योंकि वो दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग आउट। तो इसलिए मिड साइकिल में कई बारी एक्यूरेट एंट्रल फॉलिकुलर काउंट नहीं मिल पाता है, एंड इसलिए वो टाइम जब पीरियड्स आए हो और ओवरी एकदम क्वाइट स्टेज में हो, उस टाइम पे सबसे एक्यूरेट असेसमेंट होता है। Okay, right. So next time, if your doctor suggested you day 3 or day 2 scan, then please go ahead for that. Dr. Yes, Parul, yes. last query. How endometrial receptivity biopsy will help for donor egg IVF? एंडोमेट्रियल बायोप्सी फॉर डोनर एग आईवीएफ। अच्छा, रिसेप्टिविटी With बायोप्सी। ERA test. सो देखिए, दोनों अलग चीजें हैं। अगर किसी का कभी मतलब आईवीएफ फेल हुआ है अच्छे एम्ब्रियोज डालने के बाद, मतलब इट इज अ केस ऑफ रिकरेंट आईवीएफ और इम्प्लांटेशन फेलियर, उसमें एक फिलॉसफी है कि ऐसा तो नहीं है कि वो विंडो जबकि यूट्रस बेबी को एक्सेप्ट करता है, जो कि बहुत ही छोटी मानी जाती है, वो विंडो शिफ्टेड है। मतलब हमको लगता है कि ओव्यूलेशन इतने दिन हुआ और इस टाइम पे बेबी एक्चुअली स्टिक होना चाहिए, बट एक्चुअली फॉर सम रीजन आपका वो बेस्ट टाइम नहीं है बेबी को रिसीव करने का या इम्प्लांटेशन का, वो आगे पीछे है। सो ऐसे केसेस में एक स्पेसिफिक टेस्ट बना है जिसको एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी एरे या ऐसे कहा गया है, जो कि इस विंडो को स्टडी करने में हेल्प करता है। एंड ऐसा नहीं है कि डोनर एग आईवीएफ में इसका कोई रोल है। डोनर एग आईवीएफ करने का रीजन ये है कि आपके या तो एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी अच्छी नहीं है, या अनएक्सप्लेन फेलियर्स हैं। तो अगर आपको अनएक्सप्लेन फेलियर्स हैं, आपके पहले आईवीएफ सारे एम्ब्रियोज अच्छे बने हैं, तो अगर ये अज्यूम किया जा रहा है कि एरा मतलब रिसेप्टिविटी अफेक्टेड है, तभी इसका रोल है। अदरवाइज डोनर एग आईवीएफ में एरा का कोई स्पेसिफिक या अलग रोल नहीं है, उसका रोल वही है अनएक्सप्लेन फेलियर्स जहाँ पे अच्छे एम्ब्रियोज ट्रांसफर हुए बट इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, उसमें स्टडी करना कि कहीं कोई जेनेटिक इशू तो नहीं है एंडोमेट्रियम में, जो कि विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन या वो टाइम जब यूट्रस रेडी है वो शिफ्ट हुआ है, उसको स्टडी करने के लिए। तो इट इज नॉट अबाउट एरा एंड डोनर एग, इट इज अबाउट रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर एंड विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन।
Right. And if you have recurrent failures, then please you can go ahead with this process, this procedure. It will definitely going to help you. So, Dr. Parul, yes, we have cleared the doubts, and I think हमने time ज़्यादा ले लिया आपका. Your patients are waiting. No, no, So, it's interesting to reach to a wider audience, you know. ये पेशेंट एक एक पेशेंट से तो हम अक्सर बात करते हैं, बट अगर ये नॉलेज थोड़ा एक वाइडर ऑडियंस को कर सके स्प्रेड, आई थिंक इट इज वेरी हेल्पफुल. बिकॉज AMH का आई डोंट नो, बट पिछले कुछ सालों में हमने देखा है इट्स अ सर्ज काइंड ऑफ थिंग. हर कोई अपनी फर्टिलिटी जर्नी या अपने कंसेप्शन की बात ही AMH से शुरू करता है. मेरा AMH इतना है, अब क्या होगा. 1 से कम है तो पक्का डोनर ही होगा. 5 से ऊपर है तो ज्यादा गड़बड़ है. तो आई थिंक AMH ने बहुत डरा रखा है, एंड वी वुड सजेस्ट दैट प्लीज डू वॉच दिस सेशन अगेन, क्योंकि AMH से डरने घबराने की बात नहीं है. जरूरत है तो आपको सिर्फ और सिर्फ राइट डॉक्टर चूज करने की. एंड इफ यू आर इन दिल्ली NCR, प्लीज डू विजिट डॉक्टर पारुल एट ART फर्टिलिटी क्लिनिक दिल्ली. डॉक्टर पारुल, आप गुड़गांव भी विजिट करते हो? हाँ, आई कम, Because मैंने ART फर्टिलिटी गुड़गांव में मैं आती हूँ, बट कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है. सो इफ आई हैव अ पेशेंट हु वांट्स टू मीट मी, आई गो एंड सी द पेशेंट. मैंने स्लॉट वहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है. बट मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 बार तो मैं वहाँ जाती ही हूँ पेशेंट्स देखने के लिए. okay, so if you are in Gurgaon, because we have queries related to this, so I would suggest that just one visit in Delhi will be fine, because दोनों पास पास है. और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो definitely you can visit Gurgaon center also. So thank you so much, Dr. Parul. Thank you for Welcome. Thank joining you for your and time. just talking about this AMH and clearing the doubts related to this AMH. Thank you so much for joining. Thank you. Thank you. Good day. Bye bye.